What's up? Let everybody join in. What I'll do is I'll write here. Hello, sir. Hi. Hi. Hello. Okay, do this. Be on video and audio by 303, and then I'll join in. क्या हुआ? Come on, video people. Video audio on करो. Quick. Okay, hi Sujal Wagh. Hi Aryan, Rajesh. Hello Ashka. Swayam and Kabir, put on your video. और कोई joke है क्या? Do you read any other joke? You know of any other joke? हाँ, बड़े सारे मीम आते रहते हैं वैसे भी. Pfizer has said that they'll come up with a pill to treat COVID by the end of the year. That's great. इसका मतलब आ सकेंगे सब लोग स्कूल में. ऑडियो ऑन करो यार, तुम लोग कुछ बोलते हो नहीं, फिर मुझे लगता है मैं किससे बात करूं. ऑन दी ऑडियो, टॉक टू मी. Yes, sir. हाँ, who's that? Sir, me. मी मतलब नाम बोलो ना भाई. Sujal. सुजल, अच्छा सुजल. Okay. Who's this one? Swayam? Is that Swayam? Yes. Ah, because yesterday I didn't see your face. Okay, and this one is what, Kabir? Hmm. Okay. What is this background you have? Is that a virtual background or a real background? Can't hear. Can you guys hear him at all? No, sir. अरे कल भी यही इशू था इसका. ओके, आशका शाह, क्या जोक बनेगा आजकल? क्या कॉम्प्लिकेटेड नाम है भाई. Anyway, all of you keep your audio always on so that when I ask a question, then it takes time for you to like, acha, then you say something and then you realize, oh, it's muted, then you go on mute. Just kills the flow. Sir, I have put one in the chat box. You could check it out. Oh,
Sure. I like him, man. He's always up with jokes. Very nice. एक तो तुमने पास्ता बनाया था उसका. Okay, sir, if you were a cricketer who hit many sixes for a team, and if they want you to do it again, what will they tell you? Okay, many sixes for a team, and if they want you to hit again, hit जो लोहित का जो hit है वो तो हो गया. Okay. बताओ. Hello, sir. Am I audible now? हाँ, now you're audible. Yes, sir. But Sir, it you're is a real background. हाँ तो अब वीडियो नहीं है ना, वीडियो ले आओ स्वयं. Bring your. Yeah. Oh, go hit Sao. Oh, this is great, man. Very nice. I like this joke, Sujal Wag. This is fresh. New go hit. Very nice. Ha! This is nice. This is nice. हाँ बताओ, आशका वाला बताओ. सुजल ऐसे ही बताओ ना, मुंह से बताओ ना. If she were a So- space rocket, then what would be her name? Space rocket, wait. Ashka Shah. अंतरिक्ष. नहीं बताओ. किसी को और आया तो बताओ. आकाश शाह. ओ शाह आकाश जा जा. अच्छा आकाश जा. राइट. Ha, that's good, man. हाँ, if somebody has to ask Ashka to go, then she'll be called Ashka Ja. Very nice. Ashka Ja. Kabir, Swayam and Suhani Sao, put on your video. Sir, I'm having major network issues since the morning, so I won't be able to put on the video. Otherwise, it will start lagging for me. Okay. ठीक है. बाकी लोग का तो है वीडियो ऑन. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. और कोई आता है कि इस क्लास में कि दिस इज ऑल? इतने लोग हैं? No, sir, this is all. ओके, चलो चालू करते हैं फिर. कल हमने पढ़ाई की थी किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, और हमने एवरेज की भी बात की थी, है ना? सो शौर्या, एवरेज स्पीड क्या होता था? Average speed. The average speed is the speed which is covered in the whole distance. फॉर्मूला क्या है उसका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला. और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, ओके. कबीर, तुम्हारा ये ऐसे एकदम स्टूडियो लाइट क्यों लग रहा है? तुमने क्या लगाया वहां पे? Which is the lights and all. ओ यू पुट लाइट्स एंड ऑल. Yes. वेरी नाइस यार. मतलब ऐसे प्रॉपर स्टूडियो लाइट लगाया क्या? स्पॉटलाइट वगैरह? नहीं सर, मेरे पास रिमोट है, लाइट का कलर चेंज होता है. करो. Wait, sir. Wait. ओके. फंकी, हाँ. नाइस. Sir, should I do it? हाँ करो. अभी लाइट है तो सर पूरा ऐसे ही है तो इसको पूरा डिम कर सकते हैं. अच्छा. वाइट ही रखता हूँ सर. This is fun. डार्क कलर है. What is that? That's a spotlight, LED spotlight. Yes, sir. No, sir. It's normal lights, but Dad had put that remote control inside. That's why. So we're able to control it. हाँ, but इतनी hard light है ना, तो must be a spotlight or something. Yes, sir. Okay. चलो. So I am आर्यन राजेश. वीडियो हमेशा ऑन रखो यार, और ऑडियो भी ऑन रखो, नहीं तो थोड़ा मजा नहीं आता. ठीक है. Sir. Hey, sir, I had to go and take the book. That's all. हाँ, कोई बात नहीं. It's okay. चलो. Just a second. Oh, so Sujal is asking, I can see a mic behind. So do you sing also? हाँ, मतलब हम
actually a musician, but then sometimes I record also. मैं संडे को कर रहा था, पिछले संडे को. उसके बाद से I've just not been able to record after that. Didn't get time. But yeah, I do some covers and all sometimes. और लॉकडाउन में तो इतना सारा टाइम होता है. Sir, so do you post them? Yeah, I post them sometimes. On my Insta page also you may find some covers. And once I made a song for my mom, so that's also there on YouTube. उसमें होंगे कुछ 70-80 हज़ार वो views. तो ऐसे बीच में डालते रहता हूँ. I'm not really a professional musician, but I do record sometimes. So can you send it? ठीक है. या तुम ऐसे ही सर्च कर लो, YouTube पे मिल जाएगा तुमको. लोहित साहू सर्च करोगे तो. My name is Lohit Sahu, and if you search, you'll find it. And on Insta also. You guys must not be on Insta, ना? Insta पे नहीं No, होगा. sir. ठीक है. वो 10th के मैं बाद. इंस्टा पे हूँ. हाँ. मैं इंस्टा पे हूँ. But तुम्हारी तो एज नहीं है अभी इंस्टा पे होने की. क्या एज क्या है तुम्हारी? सर चलता है. 13 plus है sir. 13. तुम्हारी 13 प्लस होगी तुम लोग? Sir, I'm 14. Oh, then you can get on Insta. Yes, sir. Interesting. स्वयं आ जाओ यार वीडियो पे भाई. ठीक है एवरीबॉडी. चलो करते हैं कुछ सवाल. तो कल हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब की बात की थी, तो अब आज नोटेशन देख लेते हैं. तो एस को हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. और टी क्या दिखाता हमको? टी बोलो. Distance. टी डिस्टेंस दिखाएगा. टी No. T is time. हाँ टाइम दिखाएगा ना. टी टाइम दिखाएगा हमको, है ना. उसके बाद टी. जस्ट अ सेकंड. Just a second. ओके. और हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था. तो ए दिखाता हमको एक्सेलरेशन. ओके. एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है आर्यन राजेश? Sir, acceleration means so when you are in a car, you have the it नहीं means कट that बताया था वो सब ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. व्हाट डज इट मीन इन फिजिक्स मैथमेटिकली? व्हाट डज इट मीन? velocity minus क्या था सर? velocity minus final velocity minus initial velocity by time. हाँ. तो अब यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी की जरूरत होगी. तो फाइनल वेलोसिटी को हम दिखाते हैं v से. दैट्स फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी. और इनिशियल वेलोसिटी को दिखाते हैं हम u से. ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी. तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोला था? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. राइट. तो इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो दिस विल बिकम at इक्वल्स टू v माइनस u, है ना. तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at. राइट. सो दिस इज योर first equation of motion. Get it? इसको नोट कर दो इतने सारी चीजों को. तो ये जो S जो लिखा डिस्प्लेसमेंट, इसका SI यूनिट क्या होगा? People just speak up. Keep your mic. Meters. हाँ मीटर होगा, है ना. SI यूनिट मीटर होगा. और T टाइम का SI यूनिट Second. Seconds. और एक्सेलरेशन का SI यूनिट Meters upon Meter second per square. second square. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेरी नाइस. फाइनल वेलोसिटी का यूनिट वेलोसिटी का क्या यूनिट होता है? Meter per second. हाँ तो फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी होनी ना. तो मीटर पर सेकेंड. और इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट Meter per second. Meter per second. राइट. ये नोट कर लो. तो ये सारे इनोशंस हैं. फिर ये यहाँ से हमने
जो डेफिनेशन था उससे फॉर्मूला निकाल के ये पहला इक्वेशन बना लिया. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. हो गया? Yes, sir. ओके. फिर हमने कल ग्राफ के बारे में बात की थी, है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है? Okay. Okay, शौर्या सूद, टॉक टू मी. ये कौन सा एक्सिस है? ये वाला? X axis. ओके, एक्स एक्सिस. ये वाला कौन सा एक्सिस है? Y. y एक्सिस. ऑलराइट. ओके, अभी इस y एक्सिस में सपोज हम वेलोसिटी दिखा रहे हैं, ठीक है? और इस एक्सिस में अगली, चलो वेलोसिटी को मारो गोली, हम दिखाते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट. ठीक है शौर्या सूद? सो डिस्प्लेसमेंट हम किससे दिखाते हैं, कौन से लेटर से? S. यस. यहाँ पे हम दिखा रहे हैं टाइम, तो नॉर्मली एक्स एक्सिस में हम हमेशा टाइम दिखाते हैं टी लेटर से, है ना? ओके. सो एक बॉडी है, एवरीवन, एक बॉडी है, इसको ऐसे मैं बना लेता हूं. एक बॉडी जो यहां से चालू होती है, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जाता है उसका. तो पहले फर्स्ट सेकंड में वो यहां तक पहुंचती है, ठीक है? सेकंड सेकंड में वो यहां तक पहुंचती है, थर्ड सेकंड में वो यहां तक पहुंचती है. तो ऐसा उसका ग्राफ दिख रहा है, ठीक है? फर्स्ट सेकंड में वो यहां तक पहुंची, सेकंड सेकंड में वो यहां तक पहुंची, थर्ड बॉडी में वो यहां तक पहुंची, थर्ड सेकंड में वो यहां तक पहुंची. तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कुछ आइडिया है? एनीवन? तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 मीटर, Sir, Yes, 2 sir. meter per second. है ना? तो 6 मीटर किया इन 3 सेकंड्स, तो 2 मीटर पर सेकंड. या फिर यू कैन से 1 2 3 4 मीटर्स इन 2 सेकंड्स, मतलब 2 मीटर पर सेकंड. और यू कैन से 1 2 मीटर्स इन 1 सेकंड, व्हिच इज 2 मीटर पर सेकंड. तो उसकी स्पीड क्या हुई, वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी 2 meter per second square. कैसे निकाला? हमने निकाला दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस मिला, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना? राइट. सो दिस इज y डिवाइडेड बाय x. ये पूरा y है ना, y एक्सिस में. तो जितना आया इसका y कितना था? 1 2 3 4 5 6. तो 6 था, और यहाँ पे x कितना था? 1 2 3, है ना? तो y डिवाइडेड बाय x आया ना. तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, हम ये इसका स्पीड निकालते हैं या वेलोसिटी निकालते हैं बाय डिवाइडिंग y बाय x. गेट इट? गेट इट? और इसका एंगल और बड़ा होता तो इसका y बाय x और ज्यादा होता, राइट? अभी इसका 1 मीटर पर सेकंड स्पीड होती, तो ये 1 सेकंड में यहीं तक पहुंचता, फिर 2 सेकंड में यहां तक पहुंचता, 3 सेकंड में यहां तक पहुंचता. तो ये ऐसा दिखता 1 मीटर पर सेकंड. गेट इट? तो 1 मीटर पर सेकंड में वो ऐसा दिखता, दिस इज 1 मीटर पर सेकंड. और 2 मीटर पर सेकंड में ऐसा दिख रहा है, राइट? तो एज यू कैन सी ये एंगल जो बन रहा है वो अलग अलग है, राइट? तो ज्यादा एंगल मतलब ज्यादा स्पीड, कम एंगल मतलब कम स्पीड. गेट इट?
इसको नोट कर लो जो अभी मैंने समझाया, सो दैट यू आर एबल टू रिमेंबर इट। तो इसमें लिख लेना मोर द एंगल मोर द स्पीड और मोर द वेलोसिटी। Noted. ऑल राइट, चल अब मुझे बताओ कि ये एक बॉडी ऐसी जा रही थी और एक बॉडी ऐसी जा रही थी, किसकी स्पीड ज्यादा है, ए की कि बी की? एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसकी ज्यादा है? B. Sir, B. ऑलराइट। अच्छा मुझे बताओ कि इसको हटा देते हैं। एक बॉडी जा रही है ऐसे, एक मिनट इसको okay. एक बॉडी जा रही है ऐसे, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? कितनी होगी? आशका कैसे करेंगे इस सवाल को? I don't know. अभी क्या Sir, बताया? is it Sir, 0 point something. टाइम ग्राफ के लिए क्या करना पड़ता है? स्पीड It वेलोसिटी, will be 5/3. करेक्ट। sir, 5 is it 1.66? थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे अब ये यहाँ पे थी 5 पे 3, तो इनिशियल पोजीशन इसका 5 है और फाइनल पोजीशन इसका 0 है ना यहाँ पे। Hmm. तो फाइनल माइनस इनिशियल इज -5 है ना, तो इसका 5 कम हुआ एक्चुअली, तो -5 हुआ ना, और टाइम कितना लगा 3, सो द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी -5/3। गेट इट? आ रहा है दोनों? तो जब Yes. भी when it is like this or it is like this or it is like this or it is like this, तब ये सब पॉजिटिव है, but the moment it goes below like this, इसका एंगल इस तरफ नीचे की तरफ हो जाता है, तो इट्स नेगेटिव स्पीड। ठीक है, आया? चलो बताओ। एक्चुअली मुझे बताओ कि इसकी स्पीड कितनी होगी। एक बॉडी है, ये जो ब्लू वाली है, इसकी स्पीड कितनी होगी? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज टाइम, कितनी वेलोसिटी होगी इसकी? Sir, it's equal. It's Equal all uniform. the time. कितनी होगी? 5 meter. Sir, the object is traveling at 5 meters in an equivalent amount of time. मैंने क्या Sir, बताया? it'll- स्पीड के लिए क्या the करना है? first फाइनल second. पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना? वेलोसिटी के लिए वी हैव टू फाइंड फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन Yes. टाइम। तो अभी टाइम ले लो, कितने टाइम पे लोगे? 3 सेकंड्स पे ले लो, 4 पे ले लो, 5 पे ले लो, 6 ले लो, कौन सा टाइम लेना चाहते हो बोलो? So 6. 6 लेना है, ओके। 6 पे इसका पोजीशन कितना था? Sorry, sir. 6 पे इसका पोजीशन कितना था? So वहाँ पे ही है. 5 मीटर था, है ना? Hmm.
और 1 सेकंड पे इसका पोजीशन कितना था? 5 मीटर ही था। 5 0 सेकंड पे इसका पोजीशन कितना था? 5 मीटर ही था। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना हुआ? 0 0 हुआ। 0/6 कितना हुआ? 0. 0। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। मतलब इसको कहेंगे दिस इज स्टेशनरी और बॉडी इज एट रेस्ट। वाई? बिकॉज ये 5 मीटर पे रखा हुआ है, तो वहीं पे रखा हुआ है ना। अभी फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैंने यहाँ पे रखा हुआ, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है? 5 मीटर। अब पहले सेकंड पे भी 5 मीटर पे रखा हुआ है, दूसरे सेकंड पे भी 5 मीटर पे रखा हुआ है, तीसरे सेकंड में 5 मीटर पे रखा हुआ है, तो इसकी स्पीड कितनी है? 0 ही है ना, हिल नहीं रही है, 5 मीटर पे कहीं भी नहीं जा रहा। गेट इट? इसको नोट कर लो, दिस इज द ग्राफ, ST ग्राफ व्हेन अ बॉडी स्टेशनरी। So what happens? That the graph is parallel to the time axis, the x-axis. done. Okay. Cool. आगे समझ में? ठीक है। तो अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं जहां पे एक बॉडी, तो ये क्या है? ये है S और ये T, तो इसको कहते हैं ST ग्राफ, है ना। तो यहाँ पे अगर ये बॉडी पॉइंट A पे थी ऐसे, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट B पे, उसके बाद ऐसे गई, ये है पॉइंट C, फिर ऐसे गई, ये पॉइंट D, फिर ऐसे गई, ठीक है, ये पॉइंट E, फिर ऐसे गई, ये पॉइंट F। तो अब मुझे बताओ पॉइंट A से B में क्या हो रहा है? आर्यन राजेश, व्हाट इज हैपनिंग इन पॉइंट A to B? Sir, so the object is stationary. It's not moving. Then it wait, started. wait. Okay, सुजल तुम Yes, बताओ sir. कि B और B से C के बीच में क्या हो रहा है? Sir, it is moving Moving at a positive or negative velocity? positive velocity. Very good, positive velocity. Okay, आशका शाह बताओ C और D के बीच में क्या हो रहा है? Sir, it is not moving. So it is stationary. The Yeah, velocity. it is stationary. Okay, fine. Okay, शौर्य सूद, D और E के बीच में क्या हो रहा है? Sir, it is moving at negative speed. Very nice. और moving at negative speed यहाँ तक D, सपोज ये यहाँ तक D डैश कर देता हूँ, तो D से D डैश तक गया तो इसी 0 पोजीशन पे आ गया, है ना। उसके बाद वो और पीछे नेगेटिव में चला गया, तो इसका मतलब इट मूव लाइक दिस, फिर ये 0 तक आया, फिर वो पीछे की तरफ चला गया, है ना, पीछे की तरफ चला गया। ओके, स्वयं E और F के बीच में क्या हो रहा है? It's stationary. So the thing is, yes, you could have called it stationary, but ये E से F वाला पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम में पीछे जा रहा है, तो कोई बॉडी टाइम में पीछे नहीं जा सकती ना। तो इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर टाइम में ये बॉडी यहाँ पे भी थी और यहाँ पे भी थी, ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो E to F इज नॉट पॉसिबल। गेट इट? ठीक है, आया समझ में? चलो, ऑल राइट। This is ये लिख लो, एक्चुअली चाहिए तुमको, तो एक्चुअली जरूरत नहीं है, तुम लोग को आ गया ना समझ में, ठीक है। तो दिस इज ST ग्राफ अगेन, ओके, दिस इज 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1
2, अब टाइम तो पीछे जा नहीं सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4। नेगेटिव टाइम इस तरह ले सकते हैं कि अगर हम कहें कि भाई कल 8 बजे हमारा t इक्वल टू 0 होने वाला है, तो अभी हम उसको फिर नेगेटिव ले लेंगे कि अभी हम माइनस में फिर टाइम, ठीक है, लाइक दैट। ओके, सो चलो लेट्स डू सम थिंग्स। ड ड ड ड ड ड ड ड ठीक है, so this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E। ठीक है कबीर, Yes, sir. A से B में क्या हो रहा है, Positive velocity. और B से C में क्या हो रहा है? मैं बोलूं? हाँ, Negative. सुहानी, Yes, sir. C से D में क्या हो रहा है, Sir, it's moving at a positive velocity. और D और E में क्या हो रहा है? It's moving in a negative velocity. ओके सुहानी, टेल मी, A से B में स्पीड ज्यादा होगी कि C से D में वेलोसिटी ज्यादा होगी? Sir, I think same हो. सेम होगी। अभी मैंने क्या बताया? आर्यन सर राजेश, सी से डी, हाँ, सी से डी में ज्यादा होगी। करेक्ट। तो मैंने बताया था जहाँ ज्यादा स्टीप होएगा वो ज्यादा Yeah. राइट। तो इस केस में ये एंगल है, राइट, और इस केस में ये एंगल है। तो कौन सा एंगल ज्यादा है सुहानी? ये वाला एंगल ज्यादा है, ये ज्यादा स्टीप है? No, sir. Huh? Oh, yeah. Yes, sir. Sorry. Yes, sir. तो फिर ये ज्यादा स्पीड होगी ना इसकी यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। इस केस में भी Yes, किसकी sir. ज्यादा स्पीड होगी? तो इसमें ज्यादा नेगेटिव स्पीड होगी, बी से ई में। तो मुझे अब ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई सब लोग स्पीड निकाल के बताओ, वेलोसिटी निकाल के बताओ, स्पीड नहीं वेलोसिटी। चलो निकाल के बताओ, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ई, वेलोसिटी निकाल के बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, ये तो ओरली बन जाएगा यार। ए से बी की स्पीड क्या होगी? 2/3 मीटर पर सेकेंड। वेरी नाइस। सब लोग चैट में करो फटाफट, एवरीबॉडी क्विकली। कैसे करना है? ए से बी की स्पीड क्या होगी? ये देखो, यहाँ से लिखते हैं y अपॉन x। तो ये कितना है? 1 2, y इसका y, और x है 1 2 3, है ना? ये हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड, है ना? b से c में क्या होगी? अभी नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4, है ना? दिस विल बी माइनस -5/4। 4, है ना, मीटर पर सेकेंड। चलो बाकी लोग भी सी और डी बताओ फटाफट। सुजल वाग, तुमने लिखा ए बी -22/3।
That is dash. अच्छा AB dash 2/3. ओके sorry. 2 भेज दिया सी से डी कितना हुआ लोगों ने भेजा ओके एवरीवन डू इट कबीर व्हाट इज हाउ मच इज इट फॉर सी टू डी Sir, it's 2, wait, हाँ 2 upon या अपॉन 5. हाँ Wait, sir. No. 2 अपॉन Oh, she said it's not for wait, sir. It's 2 upon 4, 4. 4 कैसे 1 2 3 4 ऐसे so you have to find this you have to find this ये कितना है 2 अपॉन ये कितना है 1 ये सी से डी का जो टाइम है वो तो सिर्फ 1 है ना सी यहाँ पे था डी यहाँ पे है तो 1 ही है ना आ रहा है समझ में Yes, sir. तो दिस इज 2/1 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड ये 2 मीटर पर सेकेंड है राइट और ये कितना होगा डी से ई बताओ So it will be 2 2 upon डी से ई कितना है भाई ये डी यहाँ पे था और ई यहाँ पे है। हाँ बोलो -7/1, which is -7 कोई कबीर meter per second. कबीर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा तुमको 7 आ रहा है, sir. तो फिर then why you not telling me कि डी से ई में इसका पोजीशन कितना गया डी यहाँ पे था इस पॉइंट 7 sir, suppose है ना 7 minus 7. 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ हो रहा है देखो 1 2 3 4 5 6 ही तो हो रहा है Sir, 6 you- for 6 upon 1 meter per square. हाँ 6/1 हुआ ना 7 क्यों बोला Sir, कबीर sir, I did that point, वो middle point also. कौन सा ये I thought that. Yes, sir, I did that. ये है ना वो मिडिल पॉइंट है भाई ये देखो 1 2 3 4 5 6 ये डी कहाँ है 2 पे है और ये क्या है 1 -1 -2 -3 -4 -4 पे है ना तो 2 से लेके -4 तक 6 ही तो हुआ डिस्टेंस तो 6 और ये कितना डिस्टेंस हुआ 1. 1 का डिस्टेंस हुआ तो 6/1 which is 6 मतलब -6 मीटर पर सेकेंड right as you can clearly see this is much more steep and hence much more speed than this और यहाँ पे इसकी ज्यादा स्पीड आ रहा है समझ में Yes, sir. ओके कबीर ध्यान दो यार और अपना वीडियो ऑन रखो ना सब लोग फिर तुम लोग चले या तो क्या मतलब हाँ सर. okay now so you've understood st graph now let's go to vt graph okay
ओके, वीटी ग्राफ, तो ये वेलोसिटी दिखाएगा हमको, ये टाइम दिखाएगा, ठीक है। तो अभी अगर कोई बॉडी 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, अगर कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी और 4 सेकेंड्स के लिए चलेगी, तो अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और टाइम है 4 सेकेंड्स, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होएगा उसका, कुछ आइडिया है क्या? वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। तो कितना हो जाएगा, 8, राइट, वेरी गुड। इसका मतलब वेलोसिटी कितना है, ये पार्ट वेलोसिटी दिखा रहा है हमको और ये पार्ट टाइम दिखा रहा है, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है ना। तो y इंटू एक्स करोगे, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम करना है ना तुमको, तो y इंटू एक्स करोगे तो ये तुमको ये एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। यू गेट इट? Yes, sir. So this area tells us displacement. So this area gives us displacement in the time. In t time इतना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसका एरिया निकाल लो फटाक से, तुमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है, नोट कर लो उसको। तो एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। Sir, done. ठीक है, तो ये जो हमने पहले पढ़ा था ना, ये y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स जो होता है वो स्लोप कहलाता है, स्लोप। तो कभी भी y अपॉन एक्स करोगे तो स्लोप होएगा, y इंटू एक्स करोगे तो एरिया होगा, एरिया ऑफ द ग्राफ, ठीक है। इसको नोट कर लेना, दैट y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू स्लोप एंड y इंटू एक्स इज एरिया, ठीक है। तो अभी हम ये डिसाइड कर रहे थे ना कि इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है ना, क्योंकि इसका y अपॉन एक्स ज्यादा था, कम था। गेट इट? ओके, ओके। अब ये देखो, ये है VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। कबीर, Yes, sir. ये वेलोसिटी दिखा रहा है, ये वाला लाइन हमको वेलोसिटी Yes, sir. ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा? Velocity का unit. हाँ, Velocity का unit. मीटर पर सेकंड। एक second. Yes, sir. तो velocity का is meter per second and time का is second. ओके, टाइम का सेकंड। अगर ये यहाँ पे मैं पॉइंट रखूंगा, इसका क्या मतलब होगा? यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो 4 क्या 4? 4 meter per second. हाँ, बट 4 मीटर पर सेकंड कब है? कब है 4 मीटर? So when the time is 0 seconds. करेक्ट। इसका मतलब जब बॉडी स्टार्ट हो रही थी तो स्टार्ट ही हो रही थी 4 मीटर पर सेकंड, अच्छा। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद अगर 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड 3 हो गई, 1 सेकंड और सेकंड में हो गई 2, फिर ये हो गई है ना, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। तो उसका मतलब एक्सेलरेशन डिसेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है।
तो ये देखो यहाँ पे थी अगर बॉडी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे आ गई बॉडी, फिर ये आ गया, तो ये क्या मूव हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है. दिस इज नॉट पोजीशन, दिस इज वेलोसिटी. ये फिर यहाँ पे आ गई, फिर ये हो गया, है ना. तो उसका लाइन ऐसा बनेगा. एक्चुअली क्या है, 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसा. तो वेट, इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं. ठीक है. तो एक पॉइंट था यहाँ पे, फिर एक पॉइंट था यहाँ पे, फिर एक पॉइंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे. ठीक है. और एक पॉइंट है यहाँ पे. इसका मतलब कबीर बॉडी जब चालू हो रही थी तब उसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकंड. फिर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड. करेक्ट. 2 सेकंड पे कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड. थर्ड सेकंड पे कितनी हो गई? 1 मीटर पर 1 सेकंड. मीटर पर सेकंड. फोर्थ सेकंड पे कितनी हो गई? 0 हो गई. वेरी नाइस. एक्सीलेरेट. हाँ, तो अभी ये डिसेलरेशन है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है. तो जब फाइनल वेलोसिटी कम होती है इनिशियल से तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं. तो इसमें इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल कितनी? अपॉन टाइम. हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी है 0 क्योंकि 0 हो गई थी. इनिशियल थी 4 अपॉन कितना टाइम? 4 seconds. 4 सेकंड्स. ठीक है. तो इज इक्वल्स टू -4 अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Yes. ठीक है. तो इस केस में हमने क्या किया, y अपॉन x किया. y -4 हुआ और x 4 हुआ, है ना. तो y अपॉन x किया जब इस केस में, तो हमको मिलता है स्लोप, और यहाँ पे स्लोप ने हमको दिया एक्सेलरेशन. ठीक है. तो vt ग्राफ के स्लोप में हमको एक्सेलरेशन मिलता है और st ग्राफ के स्लोप में हमको क्या मिलती है? वेलोसिटी. हमने पिछले में पढ़ा था ना, ये इसका st ग्राफ के स्लोप में वेलोसिटी मिला और vt ग्राफ के स्लोप में एक्सेलरेशन मिला. तो नोट कर लो, vt ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है. और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, y इंटू एक्स, मतलब एरिया. तो इसका एरिया जो होगा वो हमको दिखाएगा, क्या दिखाएगा? Displacement. वेरी नाइस. ये हमको दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस पूरे चीज में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इसका एरिया. तो ये ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 4 इंटू 4, तो 8 है ना. तो 8 मीटर होगा. तो इस पूरे मूवमेंट में अगर बॉडी t = 0 पे 4 सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है, इसके बाद कम 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 करके रुक गई यहाँ पे, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा? 8 मीटर. गेट इट? क्या आया सबको समझ में? आशका, स्वयं, शौर्य, सूद. Sir, could you repeat it once again? Okay, good. I like people who ask doubts. Sujal, good that you are asking to repeat. Suppose this is a body. Okay, it is moving at 4 meter per second. और तब मैंने टाइमर चालू किया, तो at t = 0 it is moving at 4 meter per second. Then it starts to move slowly, मतलब थोड़ा कम होते जा रही स्पीड. तो पहले आ रही थी ऐसे, उसके बाद कम होते होते यहाँ पे आके रुक गई. तो फाइनल स्पीड कितनी होगी? 0. इनिशियल स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड. Yes, sir. ट्रैवल किया ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका. ये डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ के एरिया से पता चल रहा है. कितना पता चल रहा है? 8 मीटर. तो इसने 8 Okay. मीटर रुक गया. इसका एक्सेलरेशन कितना था? -1, क्योंकि कम होते होते रुक गया. तो इसका एक्सेलरेशन था -1 मीटर पर सेकंड. इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी थी एट द एंड ऑफ 4 सेकंड्स कितनी वेलोसिटी थी? 0 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब रुक गई आप. गेट इट? Yes, sir. साइकिल चला So तो sorry to interrupt you, but हाँ, so extremely sorry to interrupt you, but I was kicked out of the meeting. So could you explain what you were asking again? where did you leave? When did you leave? When you were writing the question. This whole thing Yes, sir. मैंने तो बहुत कुछ समझा दिया. कबीर चलो समझाओ उसको. Yes, sir. समझाओ कैसे? समझाओ ना, जो है इसमें बताओ क्या हो रहा है. So there is this
So this is a graph of velocity and time, and so the numbers which is above zero is velocity, and the numbers that are right is time. So when it was on zero, then wait, sir. समझाओ कैसे सर? सर मेरे को समझाना नहीं आता. बोलो ना, जो तुम बोल रहे थे अच्छा बोल रहे थे, बोलो. So when the velocity, so when the time was zero, the velocity was 4. वेरी गुड. It's wait, sir. So it was 4 upon the time. व्हाट? नहीं, जब टाइम 0 था उसकी वेलोसिटी 4 थी, क्योंकि ये वाला पॉइंट था उसका. 40. And as this is negative acceleration, then when when that जब टाइम 4 सेकंड था तो वेलोसिटी थी 0. zero. सुहानी साहब, Yes, sir. तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब Yes, sir. y अपॉन x. तो y अपॉन x होता है स्लोप इन अ ग्राफ. तो vt ग्राफ में जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देता है. इस केस में Okay, एक्सेलरेशन sir. निकला -1. तो जब माइनस में एक्सेलरेशन होता है तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल साइकिल Okay, चला रहे हो और तुम 4 मीटर पर सेकंड से चला रहे थे, उसके बाद ब्रेक लगाना शुरू किया तो धीरे 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 साइकिल रुक के 0 पे आ गई. 0 मीटर पर सेकंड मतलब स्टेशनरी हो गई, रुक गई, है ना. उसको 4 सेकंड लगे ऐसे रुकने के लिए. तो उसने कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर यू स्टार्टेड टू अप्लाई द ब्रेक. उसके लिए उसको हम कैसे निकालेंगे? दैट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं वीटी ग्राफ में? v इंटू टी करके, मतलब y इंटू एक्स करके, तो इसका एरिया निकाल के. तो अब ये ट्राइंगल है, जैसे पिछले वाले केस में रेक्टेंगल था तो तुमने y इंटू एक्स किया तो रेक्टेंगल का ये मिला. इधर y इंटू एक्स करोगे तो तुमको ये ट्राइंगल का एरिया मिलेगा. तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट है 4. हाफ इंटू 4 इंटू 4 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर सॉरी. तो ये 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का. तो एक बॉडी है जो 4 मीटर पर सेकेंड से चालू हो रही थी और जाके रुक गई 0 मीटर पर सेकेंड पे, एंड इट टुक 4 सेकंड्स टू स्टॉप. तो उसका एक्सेलरेशन होगा -1 और जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा दैट विल बी 8 मीटर्स. गॉट इट? Yes, sir. ओके, चलो सवाल पूछो आगे. आपको कबीर Yes, sir. आ गया? हाँ, sir. आशका, शौर्या सूद Yes, sir. आ गया? हाँ, आ गया. ओके, हियर द क्वेश्चन. ओके, ये है वीटी ग्राफ. T is in seconds, B is in meter per second. Okay. चलो अब बनाते हैं.
ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी। चलो मुझे बताओ कौन बताएगा? आर्यन, राजेश, एक्चुअली नहीं, कबीर। Yes, sir. कबीर, आर यू देयर? Yes, sir. ए से बी में क्या हो रहा है? Positive acceleration. वाह, वेरी नाइस। बी से डी में क्या हो रहा है? Stationary. नहीं, स्टेशनरी था जब ये एसटी ग्राफ था। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। So velocity is constant, but the time is going on. So it's uniform motion. निकालना, बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, पहले एक्सीलरेट हो रही थी, वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है। और थिंक ऑफ इट एज योर कार, पहले 1 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड तक गई, उसके बाद तुम 3 मीटर पर सेकंड पे ही गाड़ी चला रहे हो, तो होता है ना 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है, तब एक्सीलरेट नहीं हो रही है। तुम उधर जाते होगे सीलिंग पे एक्सीलरेट करने तुम्हारे घर वालों के साथ, है ना? कबीर, Yes, sir. कबीर, Yes, sir. तो जब गाड़ी एक्सीलरेट होती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ते रहती है ना, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हाँ। है। उसके बाद एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे तुम मेंटेन करते हो, 70 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, मेंटेन करो। तो यहाँ पे इट इज नॉट स्टेशनरी, इट इज एट कांस्टेंट वेलोसिटी। Yes, okay, sir. तो जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी पे होती है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इसमें लिख लो व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। फिर सी से डी में क्या होगा कबीर? Negative acceleration. वेरी गुड। और डी से ई में? Positive. नहीं, डी से ई में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि वो सेम टाइम पे है, हाँ. सेम टाइम पे ही इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो गया ये, है ना, क्योंकि उसी टाइम पे इतनी नेगेटिव वेलोसिटी थी, फिर अचानक से इतना कैसे हो गया? गेट इट? ये पॉसिबल है क्या? नहीं. पॉसिबल है। तो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी ऐसे नेगेटिव वेलोसिटी में जा रही होगी और जाके चिपक गई किसी से, तो उस टाइम पे नेगेटिव थी, फिर अचानक चिपक गई तो 0 वेलोसिटी हो गई इसकी। अच्छा. यू गेट इट? फॉर एग्जांपल तुमने एक डार्ट फेंका, ऐसे डार्ट फेंकते हैं ना उस पे, या एरो चलाया और जाके चिपक गया उस पे, तो नेगेटिव वेलोसिटी थी उसकी, फिर अचानक जाके रुक गया तो 0 होगी ना, 0. ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद So one more example is like एक fly जा रहा उड़ रहा है और so it got stuck in a spider's web. So is that also an example for? wherever somebody gets stuck, but फिर भी स्पाइडर वेब में तो फिर भी थोड़ा वेलोसिटी रहेगा जब अंदर है। ई से एफ में क्या हो रहा है कबीर? Uniform motion. नहीं, वो तो अब ये तो 0 है ना, ये तो 0 वेलोसिटी है भाई, ये देखो ये 0 वेलोसिटी है। अच्छा, रुक गए. हाँ, तो अब ये स्टेशनरी है क्योंकि ये 0 है, ये 1 2, हाँ. तो ये 0 है। Okay. उसके बाद एस से जी में क्या हुआ? Positive. वेरी गुड, ठीक है, पीपल अंडरस्टूड, एवरीबॉडी, है ना? Yes, sir. अब मुझे अगर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इतना पूरा मोशन करने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं वीटी ग्राफ में? X into Y. हाँ, तो एरिया निकालूंगा, तो ये जितना एरिया है ग्राफ से, ग्राफ जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है वो पूरा एरिया निकालूंगा मैं, ये गेट इट? आया समझ में? ये पूरा एरिया, और ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये नीचे वाला है नेगेटिव वेलोसिटी में चल रहा था, इसलिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका एरिया कितना होगा बताओ मुझे? आता है एरिया निकालना? Yes, sir. चलो निकालो एरिया। तो मुझे सबका हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन और एरिया सब बताओ मुझे,
इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, सब एक्सेलेरेशन बताओ मुझे सबसे पहले। I'll give you 3 minutes, everybody do it on your copy, आराम से देखो और मुझे बताओ कितना होगा। क्या लिखा शौर्या सूद, ए बी 3 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर पर सेकेंड तो होगा नहीं, है ना, ए बी इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, और 3 नहीं होगा। कैसे 3 होगा? ए बी का एक्सेलेरेशन कितना होगा, ए से बी कितना हुआ, 1 2 मीटर पर सेकेंड हुआ इन 2 सेकेंड्स, तो मतलब 2/2 हो गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ ना ये। दिस इज, यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। बीसी में कितना एक्सेलरेशन हुआ? A 3/2 meter per second square. कितना होगा बीसी का? 3/2 meter per second square. 3/2. उज्जवल, अरे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करना है ना, सिर्फ जो जितने पे चल रहा है उतना नहीं करना है। तो कितना हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हुआ? ये 3 था, ये भी 3 था, तो 0. 0 हुआ ना, 0/2, तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद इसमें कितना होगा? Sir, Minus 8 8 upon meter per second. minus 8 upon 1 meter per square second. Say it again. Minus 8 Minus meter per 8 second upon square. हाँ, तो माइनस में होगा, है ना, तो कितना हो जाएगा? ये 3 है, वही -5 है, तो -5 -3 इज -8 अपॉन 1 और 2 सेकेंड, सो -8/2 इज -4, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। But like when it's coming to 0, the velocity is coming to 0. It is near the fifth, like So it 5 will be second timer. 3 So seconds, right? या सो do we take it as 1 second or 2 seconds? नहीं, हम तो यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप रहे हैं ना, तो यहाँ टाइम कितना गया? yes, sir. 2 सेकेंड गया, उसमें Yes, sir. फाइनल, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनल कितना? -5 माइनस इनिशियल कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? Yes, sir. -8 अपॉन टाइम कितना लगा इसमें? 2 सेकेंड, तो 2 -8/2 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गेट इट? Yes. और Yes. डी से ई में क्या होगा? डी से ई में 5 upon 1 meter per second square. नहीं, 5/0,
क्योंकि टाइम डिफरेंस तो 0 ही है ना, यहाँ पे भी 6 सेकंड था, यहाँ पे भी 6 सेकंड है। Okay. Will be acceleration is 5/0, मतलब infinite. 5/0 is infinity, right? Yes, sir. हालांकि असली में पॉसिबल नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 to 7 में एक्सेलेरेशन कितना होगा? 6 to 7. So 0. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल सेम ही है ना, 0। यहाँ पे कितना होगा? एवरीबडी टेल मी ऑन चैट नाउ। F 7 से 8 सेकंड के बीच में, एवरीबडी, कबीर, सुहानी, शौर्या, स्वयं, एवरीबडी टेल मी ऑन चैट कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना होगा? कितना? 5/1 meter per second square, which is 5 meters. Acceleration 5 meter per second square, right? Good. ठीक है। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे इसने कितना, इसका इधर यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 7 से 8 सेकंड के बीच में? कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 7 से 8 सेकंड के बीच में? So 2.5 meters. वेरी 2.5. वेरी नाइस। तो हमने क्या किया था, इसका एरिया निकालना था ना डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो हाफ इंटू बेस, बेस इज 1 एंड हाइट इज 5, तो हाफ इंटू 1 इंटू 5 इज 2.5। तो यहाँ पे हमारा 2.5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, पॉजिटिव। यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? तो यहाँ पे निकाल सकते हो, फिर यहाँ पे निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी मैं थोड़ा छोटा वाला सवाल देता हूँ। चलो ठीक है, this is 1 2 3 4 5, this is t in second, this is 1 2 3, this is v in meter per second. ओके, मुझे बताओ पहले 3 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। So 3 meter per meters. कितना? Meters. 3 meters, वेरी नाइस। सिर्फ तुम ही दे रहे हो आंसर यार, सब लोग चैट पे दो ना, देन अदरवाइज आई विल नॉट नो बाकियों का है कि नहीं। तो पहले 3 मीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके लिए हम इसका एरिया निकालेंगे, है ना। तो हाफ इंटू 3 इंटू 2, तो हाफ इंटू 3 इंटू 2 इज 3। तो यहाँ पे उसका 3 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बिटवीन 3 to 5 सेकेंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट होगा?
एवरीबडी पुट इट ऑन चैट, डोंट टेल मी ऑन वॉइस। इधर यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बताओ मुझे। 3 से लेके 5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? आशका रॉन्ग, थिंक अगेन। इसका एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का, 3 से 5 सेकेंड्स के बीच के लिए, है ना? तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तुम। अब ये ट्रायंगल में ये कितना बड़ा है और ये कितना? Sir, absent. सुजल वाह करेक्ट। आशका देख के बताओ। करेक्ट आशका। सुहानी करेक्ट। कबीर कम इन। हाँ कबीर, Yes, sir, I'm doing it. ये तो ओरली हो जाएगा भाई, डूइंग का क्या है इसमें? कैसे कर रहे हो बताओ? Sir, तो 5 plus 4 plus 3 बेस मिलेगा। हाँ 5 plus 4 plus 3 करेंगे तो बेस मिलेगा। 5 + 4 + 3 कैसे? 5 + 4 + 3 मतलब? नहीं सर, रुको सर, 4 रुको सर। 4 कैसे आया? मैंने क्या पूछा निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वीटी ग्राफ में क्या करते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम विल गिव अस एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं। यहाँ पे एरिया निकालते हैं, ये एरिया निकालना पड़ेगा तुमको। इस हाँ मैंने पूछा कि तो यार तुम ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? इससे पहले ये वाला भी तो हमने किया ना, उससे पहले यहाँ पे भी एरिया निकाला। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि 3 और 5 सेकंड के बीच में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना, मतलब 3 और 5 सेकंड के बीच में ग्राफ के नीचे जितना एरिया है वो हमको निकालना। अब इसका एरिया कितना है? ये कितना है? ये क्या कौन सा शेप है? ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का ये साइड कितना बड़ा है? 2 सेकेंड है ना। ये 5 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो? 5 - 3 2 सेकेंड्स। और ये कितना बड़ा है? ये भी 2 मीटर पर सेकेंड है ना। ये 0 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करके एरिया निकालोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 सेकेंड, तो ये सेकेंड गया और ये 4 मीटर आएगा। तो ये 4 मीटर हो गया इतना डिस्प्लेसमेंट। यू गेट इट? सर पहले वही कर रहा था। हाँ मैं पहले वही कर रहा था। पर इतना आसान तो है भाई, इसमें कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं है। तो 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक हमारा डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ? 4 मीटर यहाँ हुआ, 3 मीटर यहाँ पे हुआ। इसका मतलब टोटल 7 मीटर। ठीक है 7 मीटर। अब ऐसी सवाल एक बार और दे रहा हूँ, सेम ऐसी सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से करना। चलो एवरीबडी पुट इट ऑन चैट। आई नीड एन आंसर फ्रॉम एवरीबडी, ऐसे छोड़ना मत। Okay. ठीक है, इसमें इन पॉइंट्स पे मुझे बताओ कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी, डी। ठीक है, तो तुम्हें मुझे बताना है कि ए से बी में एक्सेलरेशन कितना है, बी से सी में एक्सेलरेशन कितना है, सी से डी में एक्सेलरेशन कितना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलो
Sir, I've sent you. जलवाग ने बहुत सारा भेजा, ओके। और मुझे फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ। Okay. हो गया कबीर? एक भी आंसर नहीं आया तुम्हारी तरफ से, क्या हुआ? Sir, I'm doing C to D. C to D, तो A to B का क्या आंसर है तुम्हारा? A to B, it's 3/2 वेरी नाइस। 3/2 क्या? meter मीटर। square. क्या निकाल रहे हो? एक्सेलरेशन निकाल रहे हो कि क्या निकाल रहे हो? Nice, sir. Positive acceleration. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? Meter square. Meter. हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B to C का एक्सेलरेशन कितना है? हाँ, B to C का एक्सेलरेशन कितना है? हाँ नहीं सर, मेरा I lost my internet. V2C is it's 3/3, which is 1. 3/3 नहीं है, देखो ये 3 यहाँ पे 3 था, तो इसका फाइनल कहाँ है? 1 है, तो 3 - 1 2 हुआ ना ये, यहाँ सिर्फ 2 अच्छा, हाँ हाँ 2/2 होगा यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक का सिर्फ 2 है, 2/2 मतलब -1, क्योंकि ये 1 है फाइनल, इनिशियल 3, तो 1 - 3 is -2/2 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका कितना एक्सेलरेशन C से D का? इसका है 0 1. meter per second. अरे उसको बोलने दो भाई, उसको बोलने दो ना, समझा रहा हूँ उसको। ये 0 कैसे होगा पता है तुमको कबीर? नहीं सर, फाइनल मैं कितना, उसमें बहुत कंफ्यूज फाइनल वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी था 1 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस, हाँ तो 1 - 1 0 हो गया, तो ये 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसका मैंने क्या निकालने बोला तुमको? मैंने निकालने बोला डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट। तो पहले इसका इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, है ना, और इतने पूरे का एरिया निकाल लो, राइट? तो निकालो पहले वाले का एरिया कितना होगा, चलो फटाक से निकाल के बताओ। Sir, I've sent you for first one. कोई बात, AB. वेटिंग फॉर Sir, कबीर। I've also sent you. कबीर आंसर बताओ।
पहले का कितना होगा कबीर, इसका एरिया कर रहा हूँ। ए टू बी, ऐसे ओरली करो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 2, हाँ 1 हाइट कितना है 2 1 2 2 हाँ 3, हाफ इंटू 3 2 इंटू 3, तो ये 3 हो गया ना, फिर हाँ हो गया 3। 3 इस वाले का कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस कितना है 2 इसका बेस है 2 और ये हाइट कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 नहीं इंटू, नहीं हाँ हाँ सर सही सही, तो हाफ इंटू 22 तो 2 2 मीटर हो गया, ठीक है। और ये पूरा रेक्टेंगल कितना हुआ, तो इसका इसका हाइट है 1 और ये कितना है और 1 2 3 4, 5 हाँ 5 नहीं 4 है ना, 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, 4 हाँ 4 4 और 4 into 1 4 हाँ क्योंकि ये होता 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 बचा ना, तो ये 4 हो गया इतना बड़ा, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया, हाँ, तो ये 4 4 मीटर हो गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4 + 2 + 3 है ना, तो 6 + 3 9 मीटर्स, ठीक है। अब किस किसने 9 मीटर्स दिया भाई, किसी ने दिया 9 मीटर्स आंसर, सर तो मैंने अलग अलग टोटल नहीं किया। यस सर, Sir, I टोटल just नहीं किया। मैंने तो एक डिस्प्लेसमेंट मांगा था ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो 9 होना चाहिए था, आया समझ में। यस सर। ठीक है, एक और ध्यान से रखना कि अगर वेलोसिटी नीचे जाती है तो ये जो नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव में मानते हैं, नेगेटिव में। तो चलो करके देखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज ये 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिया, तो यहाँ पे मुझे बताओ यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा दोनों केसेस में, कौन बताएगा, शौर्या सूद बताओ। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, तो ओ ए में एक्सेलरेशन कितना और ए बी में एक्सेलरेशन कितना है बताओ, ये है वीटी ग्राफ। शौर्या सूद कम इन। Yes, sir. ओ ए में एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, Yes, sir. तो निकालो फाइनल कितना Sir, है ओए में, -4. So we are going to divide 3 तक रखा है ना minus -3 तक, तो ओए में 1 -3 और इनिशियल कितना था, -4. इनिशियल ये है ना भाई, ये 0 टाइम t = 0 पे इनिशियल था ना, 4 कैसे, जैसे 4 कैसे बोला तुमने इनिशियल, बताओ ना शौर्या यार। एक तो सब लोग अपना वीडियो ऑन रखो पहले, कीप द वीडियो ऑन एवरीबॉडी। शौर्या सूद कीप योर वीडियो ऑन, ओके। टेल मी ओ ए में फाइनल क्या है, ए फाइनल है ना, और ओ इनिशियल है, ए बी में कौन फाइनल है, What, sir? ए बी में क्या फाइनल है, 4. और बी फाइनल है और ए इनिशियल है। फाइनल का मतलब जो बाद वाले टाइम में होता है, इनिशियल का मतलब जो पहले वाले टाइम में होता है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा यहाँ पे, -3 -0, Sir, it will be -1. हाँ कैसे, -3 -0 अपॉन कितना टाइम गया, 3 टाइम गया, 3 सेकेंड, तो ये हो गया -3 -0 अपॉन 3, तो हो गया -1 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन होगा ए बी में, एवरीबडी पुट इट ऑन चैट, एवरीबडी पुट इट ऑन चैट एंड शौर्या सू टेल मी हियर, ए बी में एक्सेलरेशन कितना होगा,
Everybody put it on chat. Ashka, Sujal, Aryan, Swayam, Kabir, put it on chat. AB का acceleration कितना होगा? शौर्या सूद बताओ ना क्या हो रहा है? AB 1/4 मीटर। नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम कर क्या रहे हो, इसमें कैसे कर रहे हो? तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है? शौर्या, शौर्या, यस सर। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4। 4 नहीं है, 4 तो टाइम है भाई, टाइम दिखा रहा है ना 4। वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? ये है, कितना है? 0। 0। फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? ए की वेलोसिटी -3। -3 थी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी -3 अपॉन टाइम। कितना टाइम गया ए से लेके बी तक? 4। 4 नहीं गया। ए कितने सेकंड्स पे है? 3 सेकंड्स पे है ना, 3 सेकंड्स। और बी 4 सेकंड्स पे। तो कितना टाइम गया 3 से 4 सेकंड के बीच में? 1 सेकंड। 1 सेकंड गया, तो 1। तो अब इसको करेंगे तो क्या आएगा? 0 माइनस -3 क्या हो गया? 3। +3 अपॉन 1, तो विच इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया समझ में शौर्या सूद? हाँ सर। ओके, अब इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ मेरे को, कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट? इस पूरे 4 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? आशका, अभी 3 -3 नहीं होगा, इट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू गेट इट हाउ? बिकॉज का स्टीप ऊपर की तरफ है ना, तो हमारे कॉन्सेप्ट में भी आ रहा है, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने से भी +3 आया। यू गेट इट? ये वाला माइनस में, क्योंकि इसका स्टीप इस तरफ है, इसका स्लोप। चलो शौर्या सूद, इसका कितना, कैसे निकालेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट? एरिया अंडर द ग्राफ से निकालते हैं। तो एरिया कितना हुआ इसका? ये क्या है? ये शेप का नाम क्या है? ट्रायंगल। हाँ, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बी इंटू एच। हाँ, तो हाफ इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे कितना है? हाफ इंटू बी कितना है इसका? या इसका बेस कितना है भाई? 4। 4। और हाइट कितना है इसका? 3। तो ये -3 है ना, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है ना। तो इंटू -3, तो कितना हो गया? -6 मीटर्स। गेट इट? यस सर। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा -6 मीटर्स पूरे का। समझ में आया? ओके। तो इसका मतलब बॉडी यहाँ पे खड़ी होगी, तो पूरा, अभी देखो नेगेटिव वेलोसिटी से गई, इसका मतलब जोर से गई होगी ऐसे, -3 तक पहुंची, है ना। उसके बाद वेलोसिटी कम होते 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 वापस कहीं पे जाके रुक गया। तो इसने टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा -6 मीटर का होगा, इस तरफ, इस डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में? तो हाँ सर। ऐसे चलेगा काम। ओके, डन डन। तो चलो अब एक फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूँ, डिफिकल्ट वाला। एवरीबॉडी रेडी? स्वयं, आर यू देयर? Yes, sir. ये वाला सवाल अब तुम करोगे। चलो, सब लोग चैट में करेंगे, तुम मेरे साथ करोगे। ओके, ये है 0, ठीक है। ये 1 2 3 4 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके,
एक बॉडी गई ऐसे, ये क्या है, 1 3 4, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ एक बॉडी का, इसमें पॉइंट्स भी मैं बता देता हूँ। दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। तो मुझे एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट बताओ और एक्सेलेरेशन भी बता दो। ए से बी का कितना एक्सेलेरेशन, बी से सी का कितना, सी से डी का कितना, डी से ई का कितना, ई से एफ का कितना, और एक टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ। चलो एवरीबॉडी डू इट ऑन चैट। स्वयं टेल मी ए से बी का एक्सेलेरेशन कितना होगा। स्वयं आर यू देयर? पुट ऑन योर वीडियो। Yes, sir. My internet is like slow, so I can't put on my camera. पर इंटरनेट बेटर कराओ ना यार, ये 3-4 महीने तो ऐसी क्लास चलने वाली है। Yeah, no, actually I'm in my village. That's why. Okay, tell me how to find the acceleration from A to B. बताओ। So we have to find total velocity and velocity, हाँ, and फाइनल माइनस we इनिशियल। have to find velocity. तो बताओ ना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ बी पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? Yeah, upon time. फाइनल वेलोसिटी कितनी है ए से बी में? फाइनल वेलोसिटी कितनी है स्वयं? So 1 second. क्या हुआ? ओके स्वयं टॉक टू मी। Yeah, फाइनल का मतलब क्या होता है? जो टाइम बाद में आता है। ए बी में कौन सा yeah. बी आया बाद में कि ए आया बाद में? Sorry. ए बी में बी टाइम बाद में आया कि ए टाइम बाद में आया? B. तो बी बाद में आया, इसका मतलब बी फाइनल है। तो बी में कितनी वेलोसिटी? बी कितने टाइम पे है, कितने सेकंड्स पे बी? 2. और उसकी वेलोसिटी कितनी है? इस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? ये वेलोसिटी दिखा रहा है ना हमको, ये वेलोसिटी दिखा रही है। Yeah. तो इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ? 0. 0. तो 0। फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 0. वेलोसिटी कितनी है? ए की वेलोसिटी कितनी है? ए की वेलोसिटी 4. हाँ 1 2 3 4 4। ओके, अपॉन टाइम कितना टाइम लगा ए से बी जाने के लिए? कितना टाइम लगा ए से बी जाने के लिए? 2 seconds. हाँ, तो ये ए 0 सेकंड पे था और बी 2 सेकंड पे, तो इसका मतलब उसको 2 सेकंड लगा जाने के लिए। Yeah. अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? -4 अपॉन 2। इसका मतलब कितना एक्सेलरेशन हुआ? Yeah. -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन हुआ। Yeah. अभी वैसे बी से सी का निकाल के बताओ मेरे को फटाक से, इतना टाइम मत लगाओ। So your voice is cutting in between. Like, बी से सी का एक्सेलरेशन बताओ। hello. कैन यू हियर मी? ऐसे तो हो नहीं पाएगा भाई। कबीर तुम बताओ।
B से C का Yes, sir. एक्सीलरेशन? तो सर B से C का है -4. Wait, sir. B से C तो फिर initial velocity फाइनल वेलोसिटी कितनी है C में? -4. -4. इनिशियल वेलोसिटी 0. -4 -0 अपॉन टाइम कितना लगा? Time 2. हाँ 2. तो हो गया -4/2 मतलब -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? Yes, sir. तो अभी एक्सेलेरेशन उतना ही जितना उसका था, मेक सेंस, क्योंकि एक ही लाइन में। था, हाँ. अभी C से D का एक्सेलेरेशन कितना हुआ? तो हम लोग C is -4 और D 0 है, तो और टाइम इज 1. हाँ तो कितना So होगा? we'll do expensive. So we'll do 0 -4 नहीं 0 upon -4 0 हाँ, -4 हाँ अपॉन sorry, upon 1. वेरी गुड। तो 4 upon 1 which is equal to 4 meter per second square. तो ये पॉजिटिव में आया है ना, ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में आया। ओके, Positive. B से E का एक्सेलेरेशन कितना होगा? 0. वेरी नाइस, वेरी गुड यार, अब बन रहा है तुमसे, है ना? अभी E से F का कितना होगा? Sir, can I say? हाँ नो, अभी कबीर ही बताएगा। हाँ बताओ, E से F का कितना होगा एक्सेलेरेशन? So we do F is -2. -2 नहीं है भाई, नहीं, sorry, +2, sorry. हाँ And ये 0 है तो 2 plus 0. हाँ फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 - 0 अपॉन 0 upon 1. That's 2 upon 1. मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्क्वायर। तो इतना एक्सेलेरेशन हो गया, ठीक है। अब इसका पूरे का मुझे डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो इन डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, VT ग्राफ में एरिया निकालते हैं। तो चलो, एरिया AB का कितना एरिया, इसका कितना एरिया निकलेगा? half into height, which is half into 2 into 4. So it's इसका कितना एरिया निकलेगा? 4. अच्छा, इसका है इसका भी सेम है ना? नहीं ना, इसका टाइम अलग है। कितना? 12. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू -4 6 maybe. 6 -6. -6. Yeah, sorry. -6 मीटर हुआ। ओके, अब इसका इसका है हाँ इसका 1 हुआ ना? 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 - 6 + 1 इज इक्वल्स टू -1. वेरी गुड, -1 मीटर। ठीक है, तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। सुजल वाह करेक्ट। So, like, though I got the correct answer, but I did not understand the way you did for BCD triangle. I like split it up into two. नहीं तो क्यों, इसको पूरा ट्रायंगल ले लो ना भाई, तो इसका कितना हो जाएगा? Okay, sir. हाफ Yes, sir. बेस 3 इंटू हाइट, हाइट इसका कितना है? -4. -4 इधर से आ गया, -6। Okay, sir. Got it, people? Clear? Easy? अभी आ गया क्लियर, सब समझ में? अब यहाँ से हम डेरिवेशन करेंगे। Ashka, you didn't give the answer for displacement. Did you get it? Yes, sir. Okay. सुहानी, अच्छा सुहानी is not there. उसका रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा मुझे लोगों को। ओके, देखो
ये टाइम इज इक्वल टू ये 0 है ना, और ये VT ग्राफ है, तो 1 2 3 ऐसे करके, और ये 1 2 3 4 5। ओके, अभी एक बॉडी निकली, वो यहां से निकली, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, ठीक है, और वो फाइनल वेलोसिटी पहुंच गई उसकी आफ्टर t सेकेंड्स। तो फाइनल वेलोसिटी हम किससे दिखाते हैं? v से, है ना। तो ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी इसकी v है यहाँ पे, इस पॉइंट पे। गेट इट? उसके लिए कितना टाइम आपको t टाइम देगा? आया समझ में? तो अभी इसका फाइनल वेलोसिटी इतना है, ये आ गया सब समझ में? तो अब मुझे बताओ कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर इनिशियल वेलोसिटी को टाइम तक ये करके उसको बेस यूज करेंगे और हाइट को इनिशियल वेलोसिटी से। सुनो ना, तुम पहले, मैं कह रहा हूँ कि क्या निकालना पड़ेगा टू फाइंड द एरिया, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट। So this is O, this is point A, this is point B, and this is point C. तो OABC का एरिया निकालना पड़ेगा हमको, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट S, या फिर ब्लैक से लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABC। गेट इट? ठीक है। तो OABC जो है वो ट्रेपीजियम है ना। तो ट्रेपीजियम का एरिया पता है क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सर उसका तो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, लेकिन उसको स्प्लिट करके कर सकते हैं। सर अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा सर a plus b divided by 2 into height. तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम is equals to sum of parallel sides. Sum of parallel sides upon 2 into height. ठीक है। यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन से? ये दोनों AB and OC. तो OA, सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया? OA प्लस BC और CB, राइट, अपॉन 2 इंटू हाइट। इसका हाइट ये है, क्योंकि ये पैरेलल साइड है और ये हाइट हो गया, तो दिस इज OC, राइट। ठीक है। तो OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू 1. U है, U, One. क्योंकि ये U लिखा ना हमने, Oh, yeah. गेट इट? ये U Yeah. प्लस CB की वैल्यू क्या है? CB कौन सा है? ये V. It's V. दिस इज इक्वल टू V अपॉन 2 इनटू OC की वैल्यू क्या है? OC की वैल्यू Time. T, right? Very nice. Good. So now you guys got it. So S is equals to U plus V by 2 into T. अभी हमारे पास एक फॉर्मूला था पहले जो हमने किया था, उसमें क्या फॉर्मूला लिखा था हमने? V equals to U plus AT, right? Get it? Yes, sir. तो यहाँ पे V की जगह पे ये लिख देते हैं U plus AT। तो अभी नोट मत करो, सिर्फ यही देखो। तो S इज इक्वल टू, अब V की जगह पे U प्लस AT लिख देंगे, तो U प्लस क्या लिखूं? क्या लिखूं? द ब्रैकेट U plus AT। U प्लस AT अपॉन 2 इंटू T। तो कितना हो गया? U प्लस U कितना हो गया? 2U प्लस AT इंटू T अपॉन 2, है ना। अभी T को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2UT प्लस AT स्क्वायर। वेरी गुड, अपॉन 2, है ना। तो अब अपॉन 2 को दोनों जगह अलग अलग कर सकते हैं, तो 2UT अपॉन 2 प्लस
AT स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा फिर? S इज इक्वल्स टू UT 2t. प्लस हाफ You, AT, you do, yes. हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहलाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको नोट कर लो, ये डेरिवेशन आएगा इसमें। डन? Yes, sir. हो गया? समझ में आया कैसे हुआ ना? हमको बस S निकालने के लिए हमने इसका एरिया निकाला, तो यहाँ तक ये हो गया। अगला डेरिवेशन भी यहाँ तक सेम ही है, तो ये जो लिखा है S इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू टी, यहाँ तक तो रहेगा ही अगले डेरिवेशन। हो गया? गॉट इट? तो क्या हो गया? S इक्वल टू U प्लस V बाई 2 इंटू टी, है ना? S इज इक्वल्स टू U प्लस V बाई 2 इंटू टी। अभी अब एक काम करते हैं, T को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से। तो क्या था? A इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी था, तो T इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाई ए हो जाएगा, राइट? इसको इधर डालते हैं, तो क्या हो जाएगा? S इज इक्वल्स टू U प्लस V बाई 2 इंटू टी की जगह क्या लिखूं मैं? V माइनस यू बाई, V minus U upon तो V माइनस यू, और ये क्या है? V प्लस यू, तो V प्लस यू V माइनस यू अपॉन 2 है, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको। तो V प्लस यू इंटू V माइनस यू को क्या लिख सकते हैं? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? A minus B. हाँ, A plus B. A plus B, A minus B. V square Square minus plus U 2V. square. हाँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो इसलिए ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो इससे क्या लिख सकते हैं? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी कैन राइट वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गॉट इट? ये भी नोट कर लो, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
डन? Yes, sir. भैया 3 इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं? अब तीनों इक्वेशन खुद से डिराइव करो अपनी कॉपी में, खुद से। तो एक बार रिवाइज कर लो कि मैंने कैसे किया था, है ना। तो पहला वाला तो बहुत ही सिंपल है, a इक्वल्स टू b माइनस यू बाई टी, डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर दूसरे वाले में हमने ग्राफ बनाया, vt ग्राफ, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इसको ये किया, है ना, फिर यहाँ से निकाला। तीसरे में इसी की जगह, दूसरे में v को हमने रिप्लेस कर दिया, और तीसरे वाले इक्वेशन में t को रिप्लेस कर दिया। तो ये इक्वेशंस क्यों बनाई है हमने? तो देखो 3 इक्वेशन कौन कौन सी बनी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये सेकेंड बना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन बना v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों एक ही जगह से आए, बट तीनों अलग अलग इक्वेशंस क्यों हैं? कि जब हमको v u t पता हो तो हम ये लगा सकते हैं। अगर हमको v नहीं पता हो तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, मतलब v का कोई मेंशन ही नहीं है तो हम ये वाला इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ v ना तो हमको पता होना चाहिए ना हमको निकालना है। यहाँ पे t का मेंशन नहीं है ना, नो t गिवन और आस्क्ड, तो हम ये वाला लगाएंगे। यहाँ पे नो v, है ना, गिवन और आस्क्ड, और यहाँ पे क्या है, नो s गिवन और आस्क्ड। तो जब s का कोई मेंशन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब v का कोई मेंशन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब t का कोई मेंशन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। गेट इट पीपल? इसलिए 3 इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब इनको डिराइव कर लो फटाफट। I want you to do a proper derivation along with the graph scale के साथ। उसके बाद उसकी फोटो खींच के मुझे ग्रुप पे भेजो, ठीक है। तो डिराइव करो, फोटो खींच के ग्रुप पे भेजो। अभी मैं क्लास बंद कर रहा हूं, और ग्रुप पे भेजोगे तो तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय। Bye, sir. Hi, sir. बाय Bye, sir. बाय।